Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 12 present on that side. Again welcome each and everyone on the same platform of the life physics. As you all know that we are dealing with the chapter named as the magnetic effect of the electric current, and as I discussed in the previous lecture that we have completed the part 1 of the magnetic effect of the electric current. The part 1 in which we talk about the magnitude of the magnetic field due to the current carrying conductor. So we have the two laws to describe that magnitude. First was the Biot-Savart and second was the Ampere-Circuital law. And by using both the laws we get the magnitude formula for the magnetic field in the different various cases. Now we are going to start about the part 2. Now let's talk about what is the part 2 is going to contain and what is the basic difference between part 1 and part 2. यानी मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्यों की. पार्ट 1 ये वो हिस्सा था जिसमें आप लोगों ने ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर और ड्यू टू द करंट इफेक्ट वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. तो आप लोगों ने पार्ट 1 में पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा. ओके, तो यानी आपने हमेशा बी के फॉर्मूले निकाले अंडर दी वेरियस कंडीशन. अब पार्ट 2 में ऐसा क्या चीज है जो अलग होगा पार्ट 1 से. तो पार्ट 1 में मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है. अब पार्ट 2 में क्या होगा. ड्यू टू द करंट इफेक्ट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड. अब उस मैग्नेटिक फील्ड से फर्दर क्या हो सकता है. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर या किसी भी करंट इफेक्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसे आगे जाके हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो आगे जाके क्या इफेक्ट लगाएगा अदर कंपोनेंट्स पे. पार्ट 2 में हमें यही स्टडी करना है. इट मींस अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, पार्ट 1 जिसमें आप लोगों ने बी के एक्सप्रेशंस निकाले, पार्ट 2 में हम उस मैग्नेटिक फील्ड यानी जो बी बन चुका है the magnetic field, either the magnetic field due to the magnets or either the magnetic field due to the current carrying conductor. बट जो ये B हो चुका है, अब इस B का आगे जाके क्या इंपैक्ट होगा वो पढ़ना है. यानी पार्ट 2 में अब हम B का कोई एक्सप्रेशन नहीं निकालेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव एनी फॉर्मूला फॉर द B. जो होना था वो पार्ट 1 में डिराइव. यानी पार्ट 1 पूरा B यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को डेडिकेटेड था. अब पार्ट 2 थोड़ा सा अलग जाएगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पार्ट 2, दैट चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. This is the topic that we are going to study. That we have a magnetic field, and inside that magnetic field we are allowing a charge to be enter. Means what is going to happen if a charged particle enters into a uniform magnetic field. अगर हमारे पास एक uniform magnetic field हो और उस uniform magnetic field में अगर हम एक charge को enter करवाएं, so what is going to be happen? Let's study with that. So practically it has been observed that when Q amount of charge enters a uniform magnetic field, let's suppose the strength of the magnetic field is B with velocity V, then so what we get, जब हम लोगों ने इस चीज को स्टडी किया कि जस्ट लेट्स सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. लेट्स सपोज यूनिफॉर्म मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट और शुड बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन दैट रीजन. तो इस रीजन में मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए. एंड लेट्स सपोज दैट मैग्नीट्यूड इज B. And according to the diagram as you are looking, the symbol for the magnetic field or the representation of the magnetic field is being used by using the cross lines. So it indicates that cross line use कर रहे हैं तो इसका मतलब magnetic field inward है. Let's suppose in that magnetic field a Q amount of charge enters. So Q amount of charge enter कर रहा है with velocity V vector.
सो v वेलोसिटी से आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा रहे हो, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट the charged particle is going to experience a force. Okay, why it is going to experience the force? Let's talk about first of all. So you all know that this is the region of the magnetic field. ये वो इलाका है, वो रीजन है जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड दिया. ओके ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? मैग्नेट से बनाया, सोलिनॉइड से बनाया, वो अलग बात है, बट आपने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया. सो दिस इज योर गिवन मैग्नेटिक फील्ड. ये आपका गिवन मैग्नेटिक फील्ड है जो आप लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहे हो. ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स सपोज आप एक क्यू चार्ज को एंटर कर रहे हो. सो अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. एंटरिंग वर्ड मींस वो मूव कर रहा है. जब मूव करेगा तभी तो एंटर करेगा. सो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल क्या है? द चार्ज पार्टिकल इज इन द मोशन. चार्ज पार्टिकल मोशन में है. और ये चीज तो अब हम भली भांति जानते भी हैं. वी आर क्लियरली मेंशन दैट व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल इज अ मोशन, कौन सा इफेक्ट बनता है? करंट इफेक्ट बनता है. तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो करंट इफेक्ट बनेगा. और इस चैप्टर की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट से हुआ था कि जब भी करंट इफेक्ट होगा, व्हेनेवर देयर इज अ करंट इफेक्ट, ड्यू टू द करंट इफेक्ट देयर वुड बी अ मैग्नेटिक इफेक्ट. यानी करंट की वजह से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लाइक द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. ऐसे ही एक और है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. यानी जब भी करंट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. तो यानी जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. तो चार्ज मूव करेगा तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा. यानी एक और मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है. वन मोर मैग्नेटिक इफेक्ट इज देयर. One of the magnetic field or one of the magnetic effect is present, जो हमने ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड किया है. एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो चार्ज के मूव करने की वजह से बना. यानी इसी रीजन में कितने मैग्नेटिक इफेक्ट हो गए? 2 मैग्नेटिक इफेक्ट हो गए. वन जो ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है, अनदर जो कि चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से आया. यानी एक ही रीजन में 2 मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी एक ही जगह पे 2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड. डेफिनेटली ये तो आप जानते हो कि जब 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक ही जगह पे अवेलेबल होंगी तो वहां पे फोर्स तो होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन. यानी जब 2 मैग्नेट पास में आते हैं, यानी 2 मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के सेम रीजन में आती हैं, तो मैग्नेट्स या तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेट्स आपस में रिपेल करते हैं. सो व्हाट दिस अट्रैक्शन और रिपल्शन इंडिकेट्स? This attraction or repulsion indicates that कि जब भी 2 मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में अवेलेबल होगा, यानी एक ही जगह पे 2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट होती हैं, तो डेफिनेटली वहां पे फोर्स जरूर लगेगा. और यही कॉन्सेप्ट यहां पे आया कि whenever the charge particle enters, charge particle enters with the velocity v in a given magnetic field, तो उस चार्ज पार्टिकल को क्या एक्सपीरियंस होने वाला है? फोर्स. आई थिंक एम आई क्लियर कि उसे फोर्स क्यों एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि वो खुद एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनाएगा. ओके, सो दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज बीइंग डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर, जो हमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुए. जब हम लोगों ने इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा तो हमें पता चला दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. यानी चार्ज जितना हाई मैग्नीट्यूड का होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा. सेकेंड फैक्टर, इट इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं. तो ये डिपेंड करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड पे जो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं. ओके, तो अब सीधी सी बात है, जो किसी भी रीजन में अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपका फोर्स उतना ही ज्यादा होगा. जैसे अगर आप 2 छोटे छोटे मैग्नेट्स को पास में लाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे फोर्स अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, स्मॉल होगा. या फिर आप ऐसे देखिए, यू हैव अ मैग्नेट एंड अलोंग विद द मैग्नेट यू आर ब्रिंगिंग एन आयरन नेल. तो मैग्नेट के पास आप आयरन को लेके आ गए. अब अगर आयरन नेल को मैग्नेट्स के पास लेके आते हैं, चेक दिस आउट, उस बात को सोचिए. If the iron nail is bring near to the magnet, so iron is get attracted. But
कितना फोर्स से अट्रैक्टेड होगा, वेदर दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी स्मॉलर और लार्जर मैग्नीट्यूडली, वो डिपेंड करेगा द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अगर मैग्नेट लार्ज है यानी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लार्ज है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल है तो फोर्स भी स्मॉल होगा। तो यानी फोर्स इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर आप दोनों जगह पे मैग्नेट को देख रहे हैं कि फर्स्ट बॉडी भी मैग्नेट है, अनदर भी, अब दो मैग्नेट पास लाते हैं तो डेफिनेटली फोर्स डिपेंड करता है दोनों की मैग्नेटिक फील्ड पे। तो देखो, एक तो हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लिया जो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे थे। अब डेफिनेटली ये फोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो करंट इफेक्ट बन रहा है, करंट इफेक्ट बन रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बन रही है डेफिनेटली। तो एक हमने दी, एक प्रोड्यूस की। अब आप इसके बारे में देखिए, तो इनडायरेक्ट वे में अगर बात करूं तो हमारा जो फोर्स है, द अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, इसकी पे भी और जो आप बना रहे हो उसके भी। तो ये तो हम लोगों ने मेंशन कर दी। अब इस पे बात करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कितना करंट बना, क्योंकि करंट बन रहा है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इस वजह से आ रही है। ओके, अब कितना करंट इंड्यूस होगा ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। सो द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस और अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस, कितना करंट इफेक्ट बन रहा है, दैट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। नंबर 1 चार्ज एंड नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। मानते हो कि नहीं मानते हो? पुरानी चीजें पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी, दैट कि चार्ज जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, I is equal to Q by T। ये रिलेशन आपको ये आइडिया देगा कि मोर बी द चार्ज मोर बी द करंट, तो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और करंट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पे भी डिपेंड करता है, I is equal to V ना, वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा करंट कितना होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज, तो यानी चार्ज का वैल्यू डिसाइड करेगा करंट कितना है। और करंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू बायट-सेविट्स लॉ, मोर बी द करंट मोर बी द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है करंट पे और करंट डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। तो इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि फोर्स कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि सेकंड मैग्नेटिक फील्ड कितना बना है, वो डिपेंड करेगा कि करंट कितना है, और वो डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। तो आप सीधा बोल सकते हो ना कि फोर्स डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाला कितना है। ये वाला तो चलो हमने मेंशन कर दिया, बट ये कितना है ये डिपेंड करेगा करंट पे। करंट किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। यानी आप सीधा बोल सकते हो फोर्स डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। डन। एंड द थर्ड फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स इज v sin थीटा। द थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, where v represents the velocity। तो आप देखो सीधी सी बात है, v पे आ जाते हैं, v का मतलब है वेलोसिटी। तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी डिसाइड करेगी करंट कितना है, करंट डिसाइड करेगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगी कि फोर्स कितना है। बट एक और चीज आपको ध्यान देनी है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बनी, यानी बायट-सेविट्स लॉ। अब इस बायट-सेविट्स लॉ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लोग ध्यान से देखें, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। रिमेंबर द फॉर्मूला? ओके, when in vector form the magnetic field induced, मैं उस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं जो चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से आएगी, ये नहीं, ये ऑलरेडी है, तो ये तो प्रोवाइड की है, ये फिक्स हो गई है। ओके, अब इसकी बात करते हैं। The direction of this induced magnetic field would be perpendicular to both dl vector and r vector. r vector means position vector, dl vector means length vector, और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो हमारे करंट की डायरेक्शन है। ये वाला बात आप सारे जानते हैं, क्योंकि करंट को वेक्टर क्वांटिटी बोल नहीं सकते, बट करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए हमने लेंथ वेक्टर लिया। अब पॉइंट यहां पे है, पॉइंट इज दैट कि यहां पे लेंथ वेक्टर नहीं है, यानी यहां पे कोई कंडक्टर नहीं है जिसमें हम लोग चार्ज को मूव कर रहे हैं। यहां पे एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है जो मूव कर रहा है। अब इस चार्ज के पास क्या है? वेलोसिटी है।
अब अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है बट वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेसिकली हम लोग करंट की डायरेक्शन वही लेंगे जहां पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा, या फिर आप बोलिए हम लोग वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वही लेंगे जहां पे हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। तो वहां पे हम लोग लेंथ वेक्टर लेते थे। अब सिंस यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है तो उसकी लेंथ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग उसकी वेलोसिटी वेक्टर पे काम करेंगे क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वहीं पे होगी जहां पे आपका करंट का डायरेक्शन है। ओके, तो यानी कहने का मतलब है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि dv वेक्टर dl और r वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो dv वेक्टर लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को पकड़ना प्लीज। और लेंथ वेक्टर वही है जहां पे करंट है। तो बेसिकली जो db वेक्टर है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हुआ। db वेक्टर करंट के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? db लेंथ वेक्टर के नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये लेंथ वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट है। तो इसका मतलब अगर लेंथ वेक्टर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है और लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ परपेंडिकुलर होगी। और हम लोग वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है, तो यानी हमारा वेलोसिटी वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी हमारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के नॉर्मल होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड में है तो करंट भी राइट साइड में होगा अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। तो ये तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट इफेक्ट उसी डायरेक्शन में लिया जाता है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, कन्वेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट, रिमेंबर इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट फ्लो में लिया जाता। तो सीधा सा बात है, अगर हम इसे पॉजिटिव मान ले फॉर अ मोमेंट, सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर राइट साइड में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी राइट साइड में होगी, और अगर करंट की डायरेक्शन राइट है तो वेलोसिटी वेक्टर भी राइट में होगी। और अगर वेलोसिटी वेक्टर राइट में है तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से शायद फोर्स बनेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। यानी वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट। I hope I clear with all the directional concept जो यहाँ पे बातें हैं। Okay, in the books और in the reference books ये चीजें डायरेक्टली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस है तो लिख दी गई, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आपको हर चीज बता सकूं कि वो चार्ज पे डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि चार्ज डिसाइड करेगा करंट और करंट डिसाइड करेगा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड वाली है, और सेकंड वाली की स्ट्रेंथ भी डिसाइड करती है कि फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में। बट वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, बट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होगी। हाँ, चार्ज का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो डिसाइड कौन कर रहा है? बी डैश को करंट, और बी डैश यानी ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के भी नॉर्मल होगी। हाँ, हम करंट को वेक्टर नहीं बोल सकते थे, इसलिए हम लोगों ने बायट-सेविट्स में डीएल वेक्टर यूज किया। अब ये करंट डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे, चार्ज पे और वेलोसिटी पे। अब सीधी सी बात है, ये वाला जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या फिर आप बोलो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। डेफिनेटली है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर है। अब ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, आप मैक्सवेल राइट हैंड रूल लगा के देख लीजिए। तो अब पॉइंट ये है कि अगर ये नॉर्मल है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ डायरेक्शन को शो करेगी अपना इफेक्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी कि मैं नॉर्मल लगने वाली हूं। बट अब ये अगर नॉर्मल है बिकॉज ऑफ दिस करंट, अब करंट को तो फिर वही बात वेक्टर में नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट थोड़ी दिखा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? चार्ज। हाँ, उस चार्ज से आगे जाके करंट बनता है जिससे आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड, तो हम तो उन्हीं फैक्टर में चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे पास गिवन है। तो एक चार्ज मूव कर रहा है बस, अब चार्ज मूव कर रहा है तो करंट तो बनेगा ही। अब चार्ज यानी करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट।
अब चार्ज को वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिखा सकते बिकॉज चार्ज भी खुद कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैट्स के स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, तो इसको तो नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन वेलोसिटी रहेगी, और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, जहां पे करंट की डायरेक्शन। ओके, तो यहां पे मैं थीटा को डिफाइन कर देता हूं, वेयर थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर डिसाइड करेगी क्या, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि दूसरे वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तभी दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला है। तो यहां पे भी लिख देता हूं, V वेक्टर इज along the direction of current। फिर से मेंशन कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखना कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन वहीं पे होगा जहां पे करंट का डायरेक्शन है। गॉट इट? सो चलिए सारे कंपोनेंट को एक साथ लिख देते हैं। सो thus F is directly proportional to BQV sin theta, and when this proportionality sign removes, a constant term K, but this K is always unity। इस K का वैल्यू हमेशा कितना रहता है, 1। so thus F is equal to BQV sin theta। so the force acting on a charged particle, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, the force acting on a charged particle is BQV sin theta। B means the uniform magnetic field that we provided, Q means the charge, and V means velocity, and theta means angle between the velocity vector and magnetic field। चलिए वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। So in vector form, how we can write? F vector is equal to, charge is a scalar quantity and it would be V vector cross B vector। So F vector is equal to Q into V vector cross B। V क्रॉस B ना कि B क्रॉस B। ये तो आप जानते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को हम लोग B क्रॉस A नहीं लिख सकते, और डायरेक्शन हमेशा V और B के परपेंडिकुलर में जाती है। ओके, तो प्लीज इस तरीके से इस बात को याद में रखना। और अगर आप यहां पे लिखना चाहें, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड तो आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज BQV sin थीटा, बट डायरेक्शन F वेक्टर would be, क्या है ये, F vector is the cross product of V vector and B vector। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट रहता है वो कैसा रहता है, परपेंडिकुलर, किसके, टू बोथ V vector and B vector। so this is your important point, that the direction of the force would be perpendicular to both velocity vector and the magnetic field vector। So here we have our first topic, जिसे अभी हम लोग elaborate करने जाएंगे, but first topic से हमें समझ में क्या आया, so हमें क्या समझ में आया, that whenever a charged particle enters into a magnetic field, जब भी एक charged particle magnetic field में enter करेगा, it will experience a force। This is the conclusion, that whenever a charged particle enters a magnetic field, it will experience a force। How much? It will experience the force of BQV sin theta। And what would be the direction of that force? The direction of that force would be what? Perpendicular to both velocity vector and magnetic field vector। Please first of all note down this page। So what is the magnitude of the force? So magnitude of force that we experience on a charged particle is BQV sin theta, or in vector form you can write QV vector cross B vector। ओके, डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, बट अभी हम लोग एक और चीज यूज करेंगे, द रूल। द डायरेक्शन इज, द फोर्स वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी एंगल हो सकता है, बट फोर्स वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा क्योंकि उनका क्रॉस प्रोडक्ट है।
Now we are going to study the rule for force direction. अब हम वो रूल पढ़ेंगे जो हमें फोर्स की डायरेक्शन अप्लाई करना सिखाएगा, एंड द नेम ऑफ दैट रूल इज, इट इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. 10th class please, 10th class का बेटे, I'm going to revise that rule. Okay, what is that rule? Let's suppose the same diagram जो मैंने अभी अभी आपके साथ ड्रॉ किया था. We have a uniform magnetic field, okay, B. In that uniform magnetic field, a Q charge is being entering with the velocity V. तो एक Q charge enter कर रहा है उसके अंदर. तो चलिए उसकी डायरेक्शन निकालते हैं by using Fleming left hand rule. So what does Fleming left hand rule states? Please listen up carefully. पहले इसको ध्यान में रखना क्योंकि स्टेटमेंट 10th क्लास में पूछा जाता था. So it was the statement of this rule was the part of the 10th class, not in the 12th class. तो इस बात को तो ध्यान से हटा दीजिए कि 12th क्लास में आपसे कोई ये स्टेटमेंट पूछेगा कि राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. हमारे पास बहुत कुछ है, बट इट डज नॉट मीन कि अगर आपसे कोई इसका रिटर्न स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है तो आप लोग इसे अप्लाई करना नहीं सीखेंगे. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल शुड बी लर्न टू अप्लाई. बहुत जगह अप्लाई करना है तो अप्लाई करना एक बार रिवाइज करवा लेते हैं. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट डज इट सेज? इट सेज इफ वी स्ट्रेच, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्टेट इट, मैं स्टेटमेंट को नहीं लिखूंगा, बट अगर आप चाहते हैं तो आप अपने स्टेटमेंट को रिवाइज कर लिख सकते हैं जब से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. दैट इफ वी स्ट्रेच आवर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, अगर हम अपना थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करते हैं such that all are mutually perpendicular to each other, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. और अब हैबिट बनाइए इसको बार बार इस तरीके से. तो दिन में 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए अपने तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली रख के बार बार. आपको लगता है ये बहुत आसान है और आसान ही है, बट जब आप कई बार बच्चे ना प्रैक्टिस नहीं करते यहाँ पे, जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो फिंगर्स सेटअप नहीं हो पाती हैं. तो इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए. So if we stretch all the 3 fingers, then if the first finger represents the direction of magnetic field, अगर first finger given magnetic field की direction को represent करता है, middle finger represents the direction of current, और current की direction कहाँ होगी वो depend करेगा चार्ज का nature क्या है. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन वहां होगी जहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट. और ये तो आप जानते हैं जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की ली जाएगी. तो वैसे बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप इस मिडिल फिंगर को चाहे तो वेलोसिटी वेक्टर बुलाइए, चाहे आप इस मिडिल फिंगर को करंट बुलाइए, क्योंकि 10th क्लास में आपने इसे करंट ट्रीट किया था, है ना. मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स अप्लाइड को. So if I state the statement that if we stretch our first finger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other such that the first finger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current or velocity vector, current बोलिए या velocity vector, then the direction of force acting on a charged particle, then the direction of the force acting on a charged particle would be given by the thumb. तो फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा? थंब देगा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये क्या है? फोर्स. बट ये बाद में बोलना है, क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे, चार्ज को मूव करवा के करंट इफेक्ट बनाओगे, मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट इफेक्ट होगा, तो ही फोर्स जाके लगेगा. तो इसे हमेशा स्टेटमेंट में बाद में बोलना है. ओके, ये चीज 10th क्लास का है. तो चलिए एक बार इस पे अप्लाई करते हैं. वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड. वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज मूवमेंट? चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. अगर साइन नहीं गिवन है, इफ द साइन इज नॉट बीन मेंशन इन फ्रंट ऑफ द चार्ज, यू ऑल नो दैट हम हमेशा उसे पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे. तो सेंटर मतलब इनवर्ड, चार्ज पॉजिटिव है तो करंट भी उधर ही होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर भी उधर ही होगा. तो फोर्स कहां लगने वाला है? अपवर्ड, यानी चार्ज पार्टिकल कहां मूव करेगा? ऊपर की तरफ. सो बाय दिस मैनर वी हैव अ रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. और अगर आप लोग हमारे जो वेक्टर फॉर्म से जो रिजल्ट आया था, अगर आप उसे मैच करना चाहते हैं, यू कैन हैव.
What is that direction? The force should be perpendicular to velocity vector and magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड. वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है? आपकी राइट साइड की तरफ. तो फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को z एक्सिस मानते हो, इसे आप लोग कौन सी x एक्सिस मानते हो, तो ये कहां जाएगा? ऊपर की तरफ. ये जाएगा ऊपर y एक्सिस की तरफ. So this is the rule and this is the conclusion and this is the formula for magnitude. ये आपका magnitude है. So this is your magnitude and this is the in the form of vector. Okay, vector form को हमेशा प्लीज ध्यान से करना. अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पिक करना चाहता हूँ that whenever any formula is being represented in vector form, whether it is dot product or cross product, आपको अपना वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. If it is a dot product, so no problem, क्योंकि the result of the dot product is always scalar quantity, तो डायरेक्शन का टेंशन ही नहीं है. प्रॉब्लम आता है when it is a cross product, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट, because the result of the cross product is itself a vector quantity, तो उसकी भी डायरेक्शन होगी. अब मैं एक पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो हर बार आता है यहाँ पे. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे मैं पिक करना चाहूंगा, तो आप प्लीज इसे भी मेंशन कर लें. कई बार आपको ड्रॉ करने की नौबत आ सकती है, तो ये 10th क्लास में भी होता था ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन. तो प्लीज इसे एक तरीके से आप अपने पास रख लीजिए. और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, सो लेट मी गिव यू एन इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग. अब मैं इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ एंटर करवा रहा हूं, ठीक है, एंड प्रोटॉन इज एंटरिंग. ओके, और यहां से न्यूट्रॉन एंटर कर रहा है. इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, प्रोटॉन नीचे आ रहा है, न्यूट्रॉन इधर आ रहा है. अब आप लोग अप्लाई करके देखिए फोर्स कहां लगेगा. सो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, प्रोटॉन पे लगेगा, न्यूट्रॉन पे फोर्स लगेगा? नो. व्हाई? बिकॉज द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल. न्यूट्रल मींस चार्ज की वैल्यू कितनी है? जीरो. और इफ Q इज जीरो तो सारा फोर्स ही जीरो हो गया. और अगर फोर्स जीरो है, अगर किसी भी बॉडी में फोर्स ही नहीं लग रहा, तो according to the Newton first law, a body will remain in the same state if no external force is applied on it. यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे. और अगर इस टॉपिक को क्लियर करूं तो टॉपिक है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय. प्लीज ध्यान से सुनना. कंक्लूजन क्या निकला? दैट whenever a charged particle enters a magnetic field, तो अगर मैं आपको कंक्लूजन लिख देता हूं यहां पे, what is the conclusion जो अब तक पढ़ा? that whenever a charged particle, most important charged particle होना चाहिए, enters the uniform magnetic field, it will experience the force. तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज होना चाहिए, पार्टिकल होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल यानी Q हो, उसके पास वेलोसिटी हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, यानी B हो, Q हो, V हो, तब हम फोर्स की बात कर सकते हैं. अगर तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, लाइक इस केस में मोशन है, मूव कर रहा है, यस सर वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सर, वो भी है, बट क्या ये चार्ज है? नहीं सर, ये चार्ज नहीं है. अगर इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो ये टॉपिक वैलिड नहीं है, यानी कोई फोर्स नहीं है, फिर कोई एस्पेक्ट नहीं लगने वाला. अब जैसे अगले केस में मैं आपको कहूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने यहाँ पे प्रोटॉन को रख दिया, वी प्लेस अ प्रोटॉन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बताइए फोर्स कितना लगेगा? प्रोटॉन चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में है, बट मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, हमने उसे प्लेस किया है, मूव नहीं कर रहा है, तो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, तो फिर भी फोर्स नहीं होगा. तो इस पॉइंट को आपको समझना है कि हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस कब होने वाला है, when a charged particle enters the magnetic field. Okay, now the one thing जो मैं अभी आपसे वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता था, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, रूल ऑफ डायरेक्शन एंड कंक्लूजन जो हमारे पास है, प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग, और इनकी डायरेक्शन देना ट्राई करना बाय यूजिंग दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नाउ अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जो बहुत बार 1 मार्क्स में देखा जाता है और आप उसको लेके थोड़ा सा डाउटली हो जाते हो, बट वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट 11th क्लास है. एंड क्वेश्चन इज इफ चार्ज पार्टिकल Q enters
द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल एक क्यू है जो कि एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी जे कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी जे कैप में, ओके, विद वेलोसिटी वी के कैप। तो चार्ज पार्टिकल बी जे कैप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी वी के कैप। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन इट। तो बताइए उस पे फोर्स कहां पे एक्सपीरियंस होगा, कितना होगा। सो सॉल्यूशन इज सिंपल। व्हाट इज द सॉल्यूशन सर, द फोर्स इज Q ऑफ V क्रॉस B। तो बताइए वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है V के कैप क्रॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B J कैप। तो इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, K क्रॉस J। क्या आ गया ये, K क्रॉस J कैप, K कैप क्रॉस J कैप। अब आपको अपने क्लास 11th में क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अगर रिवाइज कर रहा हूं बेटा, रिमेंबर I J K। अगर हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं इट वुड बी द पॉजिटिव रिजल्ट, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो इट वुड बी नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, K क्रॉस J, प्लीज V क्रॉस B वेक्टर ना कि V क्रॉस B वेक्टर, इस बात को याद रखेंगे। तो V क्रॉस B यानी K क्रॉस J, तो K क्रॉस J एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस I। सो द फोर्स वेक्टर वुड बी Q V क्रॉस B, जो कि आपके पास आया V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, बट डायरेक्शन कहां पे होगी, माइनस I के। यानी जो चार्ज पार्टिकल है इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, बट इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द पॉइंट एंड दिस टाइप ऑफ अ न्यूमेरिकल आपके पास अवेलेबल हो सकता है और रेडी रहिए। 11th क्लास जरूरी होगी, तो फिर से बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। एक बार क्लास 11th की चीजों को रिवाइज रखिए, क्योंकि वेक्टर वो टॉपिक है जो आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। गॉट इट? So am I clear with this first topic, that whenever a charge particle enters the uniform magnetic field it experiences the force। तो हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसका वेक्टर फॉर्म देख लिया, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए रिजल्ट मतलब रूल कौन सा लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो थोड़ा रूल की प्रैक्टिस कीजिए ऐसे बना के। डन है? ओके, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड ले लीजिए, चलो, and in this outward magnetic field प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हो इधर से। चलो अब इसका पाथ बताओ, मतलब इसे फोर्स कहां पे एक्सपीरियंस होगा। सो दीज आर द पॉइंट जिसकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए एक बार इन्हें रफ में और शेयर कीजिए अपने सॉल्यूशन, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने सही किया या नहीं किया। गॉट इट? बट इसमें याद रखना चार्ज का नेचर देखना जरूरी है, क्योंकि चार्ज का नेचर ही डिसाइड करेगा करंट की डायरेक्शन क्या है, और करंट की डायरेक्शन ही डिसाइड करेगा कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट जो अब तक हम लोगों ने नोट किया। डन है? नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। यही टॉपिक आगे चलता रहेगा। तो हमें अभी तक क्या पता चला कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। तो चलिए इसके केसेस बनाते हैं। तो सिंस फोर्स experienced by the charged particle is BQV sin theta. Okay, after that you have to do this and we will work on the case number 1. So first case, if theta is 0 degree or 180 degree. So what is the meaning of theta? चलिए एक बार theta को define करके दीजिए। What does theta indicates? So theta indicates angle between the velocity vector and magnetic field vector. तो पहला केस, अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री मींस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर सेम हो, यानी जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाई है उसी डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी वेक्टर उसी डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन भी वही है। ऐसे हो गया, समझ पा रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है और करंट भी उधर ही है। ओके, सेकंड केस, if magnetic field is in this direction, मान लीजिए velocity vector just उसका opposite है, means the direction of current is opposite to the direction of magnetic field, क्योंकि current अगर opposite है तो velocity vector भी opposite होगा।
तो थीटा 180 और थीटा 0, यानी 0 मींस वी रिप्रेजेंट पैरेलल और 180 मींस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटी पैरेलल। यानी चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर चार्ज पार्टिकल की है और बी मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में या तो पैरेलली एंटर करे या फिर एंटी पैरेलली एंटर करे, या तो उसके अलोंग जाए जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है या उसके जस्ट अपोजिट जाए। तो दोनों ही केसेस में फोर्स क्या होगा, बी क्यू वी साइन 0 और साइन 180। ओके, स्लैश है, डिवाइड नहीं है, या तो 0 या 180। तो यू ऑल नो दैट साइन 0 इट्स itself 0 और sin 180 it is again 0. So what would be the force experienced by the charge particle? 0. तो इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल, अभी अभी मैंने आपको एक कंक्लूजन बताया था. What was the conclusion? Conclusion that whenever a charge particle enters the magnetic field it experiences the force. तो अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था और अब मैं उस स्टेटमेंट को करेक्ट करने जा रहा हूं अपने को. मैंने कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल है, Q है, मोशन में है यानी वेलोसिटी में है और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा. अगर Q है, V है, B है तो F होगा. अब मैं अपने उस स्टेटमेंट को फिर से करेक्ट करता हूं. जरूरी नहीं कि हर बार चार्ज हो, मोशन में भी हो और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो हर बार फोर्स एक्सपीरियंस हो. और ये हमारे सामने वन ऑफ द एग्जांपल कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आइदर पैरेलली और आइदर एंटी पैरेलली अगर एंटर करता है, इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स. तो अगर फोर्स जीरो है तो पाथ, जिसे दूसरी भाषा में हम लोग क्या बुलाते हैं, रिमेंबर, ट्रेजेक्ट्री. याद है प्रोजेक्टाइल में पढ़ी थी, ट्रेजेक्ट्री वर्ड यूज किया था. तो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, द ट्रेजेक्ट्री वुड बी स्ट्रेट लाइन. अब ये क्यों, ये ध्यान से सुनिए. मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना, जीरो. आप कैसे आ रहे थे, इस तरीके से आ रहे थे. अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाइए फिर से, दैट कि अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता एक्सटर्नल, तो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा. यानी अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा. तो हमारा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या था, मोशन में था. तो मान लीजिए वो सीधा आ रहा था और वो भी 10 की स्पीड से, फॉर एन एग्जांपल. तो अगर उसे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से कैसा जाएगा, 10 की स्पीड से ही जाएगा और स्ट्रेट ही जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका पाथ कैसा हुआ, द पाथ एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पाथ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट. और ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, स्ट्रेट. So this is our case number 1 when a charged particle enters a uniform magnetic field. पैरेलल या एंटी पैरेलल कैसे भी एंटर करवाओ, आप लोग हमेशा स्ट्रेट जाओगे, सीधे जाओगे जैसे आए, अगर थीटा 0 या 180 है तो. डन है. सो दिस इज योर केस नंबर 1. प्लीज नोट इट डाउन दिस केस. इस केस को नोट करेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड केस, एंड this second case is going to be very much important key point. बहुत important key point है ये आप लोगों का. And that case is, case number 2 is if theta 90 degree. थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो. इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर. मींस if charge enters normally, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर करे, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली एंटर करे, तब क्या हो, तो फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90. एंड व्हाट इज साइन 90, 1. और ये आप जानते हो कि 90 डिग्री पे साइन ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम वैल्यू है. मींस साइन शोज द मैक्सिमम वैल्यू एट 90 डिग्री. और अगर 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम शो करेगा, so this force would be the max. So what is the maximum force experienced by? The maximum force experienced by given charge with given velocity in a given magnetic field. अगर आपके पास एक given charge है, फिक्स कर दिया, उसको एक फिक्स वेलोसिटी दे दी और एक given मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा रहे हो, तो अगर B Q V अगर given है तो आपको फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब आप कैसे एंटर करोगे, नॉर्मली. चलिए अब इसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करते हैं. ओके, तो फोर्स तो लगने वाला है,
तो डेफिनेटली अगर फोर्स लगेगा तो रास्ता तो बदलेगा। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ओके, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड q amount of charge is entering with the velocity। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में q चार्ज को एंटर करते हैं। चलिए पहले मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ड। चार्ज पार्टिकल कहां पे जा रहा है, in this direction। Since charge particle is positive, so definitely the direction of current and direction of velocity vector right side। So direction of velocity vector right में magnetic field inward, magnetic field inward और आपका velocity vector right side में है, तो थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो चलिए इसकी डायरेक्शन निकाले बाय यूजिंग दी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए ध्यान से, अब तक तो सीधा जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर नहीं किया है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इट एंटर्स, इट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द फोर्स, हाउ मच, BQB। चलिए फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड, वेलोसिटी वेक्टर का है राइट साइड में, तो फोर्स कहां लगा, ऊपर। तो आपके ऊपर एक फोर्स लगेगा, मतलब चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और जब फोर्स ऊपर लगेगा तो वो चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा ऊपर ले लेगा। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर ले लेगा। अब बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी वेक्टर अब बिल्कुल राइट में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर गया, बट अभी भी दोनों में एंगल 90 डिग्री, तो फोर्स क्या लगेगा फिर से, BQB। और इस बार फोर्स थोड़ा 100% अपवर्ड ना होते हुए थोड़ा सा टिल्ड होगा, तो इस बार चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा फोर्स टिल्ड लगेगा और वो उसे थोड़ा और बेंड करेगा। नाउ अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इस बार वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस तरफ जाएगा करंट उसी तरफ होगा, जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ वेलोसिटी वेक्टर। सो अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी वेक्टर इधर, फोर्स थोड़ा सा टिल्ड फिर से हुआ और वो चार्ज पार्टिकल को थोड़ा और टिल्ड करेगा। ओके, नाउ अगेन अगर हम इसे और बेंड करें, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स थोड़ा सा और इधर, और इस तरीके से आप पे फोर्स लगते लगते आपकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके की होगी। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ, आपको पाथ का नेचर कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाट टाइप ऑफ द पाथ और व्हाट टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी इट इज बीइंग फॉलोइंग, इट इज बीइंग फॉलोइंग द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। दिस इज योर केस नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुआ है तो अभी और बहुत कुछ पढ़ना बाकी। तो यानी जब भी हमारा चार्ज पार्टिकल, व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल enters the uniform magnetic field, normally it experiences the maximum force, उसे maximum force experience होगा, and that maximum force is BQV, और उसकी वजह से उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती जाएगी, सर्कुलर होती जाएगी जैसे जैसे घुमाते जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर सेकंड नंबर केस, प्लीज नोट इट डाउन दिस केस, बिकॉज अब इस केस के वेरियस सब केसेस पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसलिए मैंने कहा था केस 2 ही इंपॉर्टेंट है। Done? Now, so in case 2, when the theta is 90 degree, trajectory कैसी आई, सर्कुलर। तो हम लोग केस 2 पे ही हैं अभी, केस 3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आज केस 2 को ही कंप्लीटली एनालाइज करते हैं और स्टडी करते हैं। सो केस 2, ट्रेजेक्टरी कैसी है, सर्कुलर, यानी आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, योर चार्ज पार्टिकल inside the magnetic field is moving on a circular path। कैसे पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। ठीक है, ऐसे होते होते वो अपना पाथ कंप्लीट करेगा। हम लोगों ने हाफ ही बनाया था, बट अगर हम उसे कंटिन्यू करें तो पाथ कंप्लीट सर्कुलर होगा। ओके, अब बात को सुनिए, इफ द पाथ इज सर्कुलर, अगर पाथ कैसा है, सर्कुलर है, तो देखो जब केस नंबर 1 में पाथ वो स्ट्रेट लाइन, तब स्ट्रेट के बारे में क्या पढ़े यार, लाइन सीधी है, सीधी है, वेलोसिटी वही रहेगी क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था। केस 1 आई एम टॉकिंग अबाउट, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। बट पॉइंट यहां पे ये है कि केस 2 में पाथ हो गया सर्कुलर, और अगर सर्कल है तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लाइक नंबर 1, अगर आप सर्कल पढ़ना चाहते हो तो आपको उसकी रेडियस मालूम होनी चाहिए, विदाउट रेडियस हम कुछ नहीं पता लगा सकते। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे अभी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी। सेकंड, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ है, फिर कंप्लीट होगा, वो बार बार उधर ही घूमता रहेगा क्योंकि फोर्स उसे ऐसे ही लगेगा।
और अगर ऐसा है तो वो रेवोल्यूशन कर रहा है, और अगर वो रेवोल्यूशन कर रहा है तो उसका एक टाइम पीरियड तो होगा, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन रेवोल्यूशन, तो हमें वो भी निकालना है। टाइम पीरियड है तो उसके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। सिंस वो सर्कुलर पाथ में है तो हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकालेंगे, नहीं निकालोगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। और सिंस वो मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है बट उसके साथ साथ उसके पास मास भी तो होगा, और वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो दीज आर द 5 थिंग्स, ये वो 5 चीजें हैं जो हमें सर्कुलर ट्रेजेक्टरी की कैलकुलेट करनी है, और यही अब 5 चीजें हमारी कंटिन्यू होने वाली है। ओके, हम रेडियस निकालेंगे क्योंकि सर्कुलर है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर और काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ द टर्म। पहली टर्म निकालते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो पहला केस ए नाम दे दीजिए, व्हाट इज दैट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो चलिए इस डेरिवेशन को डील करते हैं। सो लेट अ चार्ज q enters the magnetic field, किसमें एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड B with velocity v normally। तो एक चार्ज पार्टिकल Q B मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली एंटर करता है। ओके, तो नॉर्मल एंटर करेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज कितना होगा, फोर्स F इज इक्वल टू BQV। नाउ यू हैव टू रिकॉल द डायग्राम जो मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया फॉर द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। और अगर आप उस डायग्राम को रिकॉल करें, इन दैट डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव सीन इन दैट डायग्राम what you have seen that when we apply the Fleming left hand rule, जब भी हमने Fleming left hand rule लगाया, mean the thumb, जब हमने थंब लगाया तो थंब की जो हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दैट थंब इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। वो जो थंब की डायरेक्शन थी यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन थी BQV जो लग रहा था, वो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है। अब ये तो आप जानते हैं कि जब भी ट्रेजेक्टरी या पाथ सर्कुलर होगा, सो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सो देयर वुड बी टू फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। वन इज रेडियली इनवर्ड, एक रेडियली इनवर्ड लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, एक रेडियली आउटवर्ड लगेगा सेंट्रीपिटल। तो यहां पे अंदर की तरफ कौन लग रहा है, BQV। सो दिस इज ऑलवेज एक्टिंग इनवर्ड, इनवर्ड मींस टुवर्ड सेंटर। ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटर से बाहर की तरफ कौन लगेगा, सेंट्रीपिटल, जो हमेशा mv²/r होता है, क्योंकि अगर सर्कुलर है तो सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा। तो ये जो BQV है ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल का काम करेगा। रिमेंबर, आप अगर एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपको यहां से रिकॉल करवाऊं, रिमेंबर हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में जब एटम को डिस्कवर किया था, एटम को पढ़ा था, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट टॉपिक वाज कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रिवाइज करना प्लीज थोड़ा सा दिमाग में, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब वो रेडियस कैसे आई थी, क्योंकि सिंस अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, सीधी सी बात है। अब सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल भी होगा और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल तो हो गया mv² उस केस में, बट सेंट्रीफ्यूगल यानी रेडियस यानी रेडियली इनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा था, वो कौन सा फोर्स था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द व्हाट, न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। कूलम्स लॉ F = kq1 q2/r², और दोनों को इक्वेट किया। यहां पे सेंट्रीफ्यूगल का काम कौन कर रहा है, BQV, क्योंकि ये हमेशा लग रहा है। और ये क्यों डिसाइड हुआ, ये हम लोगों ने जब फ्लेमिंग लगाया था तो उससे। सो दस फॉर सर्कुलर पाथ this BQV should be numerically equal to mv²/r।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये BQV mv square by r के, and when we cancel with the v, so r is equal to mv upon bq. So what is the formula for the radius of the circular path? Yes, done. हम लोग डन है यार रेडियस है. अब ये जो मैंने कहा ना हम 5 चीजें पढ़ेंगे बट बहुत छोटी छोटी होंगी, 2-2 लाइन होगी, और ये तो रेडियस थोड़ा ज्यादा हो गया, इससे आगे वाली तो और भी स्मॉल आएंगी. सो what is the formula for the radius? It is mv by bq, and this is the derivation of radius. But I want to enhance this formula for your numerical purpose. आपके numerical के लिए इस फॉर्मूले को मैं enhance करना चाहता हूँ. Okay? And that enhancement is, ये वैसे ही होगा जैसे मॉडर्न फिजिक्स में याद है डी बॉगली वेवलेंथ. बेटा एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूँ ताकि रिमेंबर आ जाए. लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. अब बताओ इस फॉर्मूले को आगे कैसे एक्सटेंड करते थे? mv कैन बी रिटन एज मोमेंटम p, तो लिख सकते हो. तो रेडियस का दूसरा फॉर्मूला p by bq. यस और नो? यस सर. तो आगे क्या लिख सकते हैं? रेडियस को एनर्जी की फॉर्म में रूट ओवर 2me. मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ओवर 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसको भी लिख सकते हैं रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी बाय bq, एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू 2m qv. एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू v. ये यहां से आया था v इज इक्वल टू w बाय q, तो w इज इक्वल टू qv, और जितना वर्क डन होगा उतनी ही तो एनर्जी होगी, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो इसको भी आगे क्या लिख लेंगे? रूट ओवर 2m qv डिवाइडेड बाय bq. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. अब मैं क्यों रख रहा हूं सुन लो. अब फॉर्मूला याद है? आई थिंक डेफिनेटली यार याद होगा, बहुत प्रैक्टिस की हम लोगों ने यार इसको. सो फॉर्मूला रिमेंबर है, और अगर फॉर्मूला रिमेंबर है तो आई विल आस्क यू एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, अगर आपको ये फॉर्मूला रिवाइज है, हम लोगों ने जब स्टडी किया तो यू आर क्लियर विद दैट, तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज होंगे. इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते थे? व्हाट वाज द न्यूमेरिकल? दैट कंपेयर द डी बॉगली वेवलेंथ, कंपेयर द डी बॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन व्हेन द पोटेंशियल इज सेम एंड द एनर्जी सेम. कभी ये पेयर कभी वो पेयर. याद आया? The same type of numerical is going to be there. Compare the radius or compare the trajectory of, let's suppose, alpha particle and proton. एक numerical करके देखेंगे. Compare the radius or trajectory of alpha particle and proton. अल्फा और प्रोटॉन को करते हैं. अब उनके बीच में देखो, याद है रेशियो लिखवाए थे कैसे, मास और चार्ज का. When they are with the same energy, अगर एनर्जी सेम है तो ये, वोल्टेज सेम है तो ये, मोमेंटम सेम है तो ये, और अगर वेलोसिटी सेम है तो ये, तो सेम डिट्टो वही न्यूमेरिकल होने वाला है जो मॉडर्न फिजिक्स में हुआ था. तो आई थिंक मैं एक टाइप का न्यूमेरिकल तो अभी क्लियर हो गया. इतना बर्डन तो मैं अपनी तरफ से रिलीफ मान रहा हूं दैट आई एम क्लियर विद दिस टाइप ऑफ मॉड. ओके, सो आई एम टॉकिंग टू दोस स्टूडेंट जो ए और बी सेक्शन में, मतलब जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स में किया है. जो स्टूडेंट मॉडर्न फिजिक्स में नहीं गए हैं वो इस चीज को थोड़ा सा पेशेंसली रखिए, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट इट. बट जिन लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है वो गेट आइडिया लेके होंगे. सो एम आई क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. नाउ द सेकंड वन वाज टाइम पीरियड. व्हाट वाज द सिंबल ऑफ टाइम पीरियड? कैपिटल T. So what is the time period? The time taken to complete one revolution. एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? So टाइम तो आप हमेशा जानते हो, टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वन रेवोल्यूशन बाय द वेलोसिटी. ओके, तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस? 2 पाई r, जो भी सर्कमफेरेंस है, और वेलोसिटी v वेलोसिटी. तो t इज इक्वल टू 2 पाई r by v. But recently we have calculated the radius mv by bq. So 2 pi mv by bq divided by v, and v cancel with the v, or t is equal to 2 pi m by bq. So what is the formula for the time period that we have? The formula for the time period we have is 2 pi m by bq. Okay, radius mv by bq and so on. So अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले को देखें तो रेडियस of the circular path depend upon the mass of the charged particle.
depend upon the velocity of the charged particle, depend upon the charge and depend upon the magnetic field. बट अगर आप टाइम पीरियड को देखें, सो टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल, डन. टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज आल्सो डन. टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज आल्सो डन. बट एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंसीडर तो की थी बट टाइम पीरियड में नहीं है, क्या? वेलोसिटी. और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इट शोज time period is independent to velocity of charge particle. तो ये प्रूफ करता है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. तो अगर चार्ज पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से एंटर करता है तो उसका मान लीजिए टाइम पीरियड 2 सेकंड है. और अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से भी आता है, अगर वही चार्ज है, अगर मास वही है, चार्ज वही है और मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, तो अगर 5 मीटर से आता है तो भी टाइम पीरियड वही है, अगर 10 मीटर की स्पीड से आता है तो भी टाइम वही लगेगा एक रेवोल्यूशन के लिए, अगर 100 मीटर पर सेकंड आता है तो भी टाइम उतना ही लगेगा. क्यों? इस बात को सोचिए. रेडियस वेलोसिटी के साथ कैसे है? डायरेक्टली. अगर रेडियस वेलोसिटी बढ़ेगी तो जैसे आप पहले वेलोसिटी 10 थी, अब वेलोसिटी हो गई 100, तो अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा. तो जब वेलोसिटी कम थी तो वो छोटी सी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो टाइम उतना ही लगेगा. अब वेलोसिटी बढ़ गई है तो उसके साथ साथ उस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ गया. तो अगर स्पीड ज्यादा हुई है तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करके आएगा तो टाइम उतना ही लगेगा. और अगर स्पीड कम है तो रेडियस भी कम है तो पाथ भी कम है. तो सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड कम है वो छोटे वाले सर्कुलर पाथ पे राउंड मारेगा और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो बड़े वाले सर्कुलर पाथ पे राउंड मारेगा. बट राउंड ऐसे मारेगा कि दोनों केस में टाइम पीरियड या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन सेम होगा. और ये इंपॉर्टेंट है. अब इसमें भी देखो एक रिमेम्बरेंस बता दूं, अगेन गो टू द मॉडर्न फिजिक्स. रिमेंबर हमने न्यूक्लियाई का पार्ट 1 किया था और उसमें स्टार्टिंग में आया था शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट टू मास नंबर. करते थे. ओके, उसका यहां से कोई लिंक नहीं है बट लिंक है क्वेश्चन का. क्वेश्चन कैसे आता था? प्रूव दैट कि डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता. यहां पे भी ऐसा आता है, प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर पाथ इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी. तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा. डन. सो हियर वी आर डन विद द टू थिंग्स. हमने दो चीजें यहां पे कंप्लीट कर ली हैं, रेडियस एंड द टाइम पीरियड. चलिए बाकी चीजों को जल्दी क्विकली खत्म करके इसे फिनिश टाइम तक लेके जाते हैं. तो दो चीजें हो गई हैं, रेडियस, टाइम पीरियड. थर्ड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सिंबल म्यू. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन या रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड. और ये तो आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड आ चुका है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? BQ by 2πm. क्लियर है भाई? डन विद द थर्ड. हो गया थर्ड हमारा. ओके, अब देखो टाइम पीरियड अगर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये भी इस पे डिपेंड नहीं करेगा. तो ये स्टेटमेंट इस पे भी लागू. सो इट आल्सो शोज दैट टाइम पीरियड यहां पे और यहां पे फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती. फोर्थ इज योर एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, ओमेगा क्या था फॉर्मूला? क्लास 11th याद कीजिए, 2 पाई बाय टी जब सर्कुलर पाथ पढ़ा था. और 1 बाय टी को क्या लिख सकते हो? 2 पाई म्यू. 1 बाय टी कैन बी रिटन एज म्यू. तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो. अगर टाइम पीरियड यूज करना है तो 2 पाई बाय टी, नहीं तो फ्रीक्वेंसी. और अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं 2 पाई, फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा हूं, BQ डिवाइडेड बाय 2 पाई m. 2 पाई कैंसिल विद 2 पाई और ओमेगा का फॉर्मूला BQ बाय m. गॉट द पॉइंट विद द फोर्थ पॉइंट. क्लियर है ना? आई थिंक am I clear? फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी. अब एक लास्ट चीज रह गया जिसको हमें डिस्कस करना है एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट? E part और the fifth part is काइनेटिक एनर्जी. तो आखिरी चीज क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी. तो फॉर्मूला
half mv square. Done. Now since we know that r is equal to radius is equal to mv by bq, तो यहां से v क्या आएगा, bqr by m. So what is the velocity? bqr by m. तो रख दीजिए यहाँ पे. So kinetic energy क्या आएगा फॉर्मूला, हाफ m v का स्क्वायर करो, b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर by m स्क्वायर. 1m cancel with the m. So the kinetic energy formula is half b square q square r square by m. So this is the expression for kinetic energy. So here we have calculated the 5 different things or 5 different parameters when the charged particle enters the magnetic field normally. अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल आता है, if the charged particle comes either parallelly or anti parallelly, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ट्रेजेक्टरी बिल्कुल स्ट्रेट है, काम खत्म. तो 0 पढ़ लिया, 180 पढ़ लिया. फिर हम गए 90 डिग्री पे. इफ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली यानी 90 डिग्री पे, तो पता चला यार फोर्स तो लगेगा. फिर हमने उसकी जब डायरेक्शन निकाली तो पता चला यार वो तो ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होगा. और अगर ट्रेजेक्टरी सर्कुलर है तो डेफिनेटली उसकी रेडियस मालूम होनी चाहिए, उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर और काइनेटिक. डन. तो ये 5 चीजें हमारे पास डन है. अब मैं जस्ट क्विकली बात कर लेता हूं उस न्यूमेरिकल के बारे में जो हम लोगों ने स्टडी किया था. तो अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे जब मैं आपसे न्यूमेरिकल या कंपैरिजन करवाऊंगा रेडियस का, तो आप जानते हो 3 ही पार्टिकल्स हमारे पास. फर्स्ट इज अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2-4 हीलियम न्यूक्लियस. प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस. एंड लास्ट वन इज अल्फा पार्टिकल. हो गया हमारे पास प्रोटॉन. और एक और एलिमेंट जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ड्यूट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ 1s2. अब देखो जो डिनोमिनेटर में है वो आपके मास चार्ज को दिखाते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चार्जेस. और जो आपके पास अपर साइड में है वो आपको मास को दिखाते हैं. तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हम हमेशा इधर से कंपेयर करेंगे. अगर प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल है तो प्रोटॉन का चार्ज अल्फा पार्टिकल का चार्ज इससे डबल है. अगर मैं अल्फा और प्रोटॉन को कंपेयर करना चाहता हूं तो चार्ज को देखिए, कौन डबल है, अल्फा. चार्ज ऑफ अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन. डन. मास को कंपेयर करें, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. एक पेयर बन गया. चलिए अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन को लेते हैं. अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन, चार्ज को कंपेयर कीजिए, डबल है तो चार्ज ऑफ अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन. मास को कंपेयर कीजिए, मास नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो डबल है. तो डबल कौन है, मास ऑफ अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन. यानी अल्फा ड्यूट्रॉन का 2 गुना में मास में. ऐसे एक और पेयर बन सकता है क्या, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन बन सकता है. इन दोनों को कंपेयर करें तो चार्ज दोनों का इक्वल है, तो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन. और मास में ड्यूट्रॉन का मास इससे डबल है, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. सो द सेम एलिमेंट्स जो मैंने आपसे मॉडर्न फिजिक्स में किए थे, बट जो कैंडिडेट नहीं अवेलेबल थे उस टाइम, प्लीज एक बार तो हम इन पार्टिकल्स को एंटर करवाएंगे. अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस और ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ 1s2. और अगर इनकी कंपैरिजन करें तो यही तो आ रहा है बार बार, या तो चार्ज आ रहा है या मास आ रहा है, QM QM. तो यहां से वो रिलेशन आपको मिल सकता है. तो पहले अगर आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को डील करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले अटेंड नहीं किया था उनके लिए प्लीज पहले यही इंफॉर्मेशन है कि ये रिलेशंस आपको लिखने, एंड लिखना तो सबको है प्लीज. सो जो स्टूडेंट जिन्होंने किया वो एक बार फिर से अबव द मार्जिन में इस चीज को मेंशन कर लेंगे. प्लीज मेंशन दैट. एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और वहां पे लिखा भी रहेगा. लेट्स हैव वन न्यूमेरिकल. चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहां से. एंड न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन, एंड इफ आई कंपेयर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वाज इन 2019 नीट. यू कैन चेक, जा सकते हो. एक तो वो ग्राफ जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, और एक ये क्वेश्चन. ये लास्ट 2 लेक्चर्स जो हम लोगों ने किए, ये वाला और इससे प्रीवियस, इन दोनों लेक्चर से एक एक न्यूमेरिकल आपके नीट में आया हुआ है. 2019 की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेश नीट एग्जाम. तो प्लीज इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं.
ठीक है। ओके, आईआईटी की बात करो, अगर आप लास्ट ईयर का आईआईटी मेन का पेपर उठाओ तो मैग्नेटिक से 3 क्वेश्चंस आए थे। 3 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम मैग्नेटिक, 2 to 3 सॉरी 30 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप अभी जाके कर सकते हो अगर आप सर्च करें तो। इफ यू वांट टू डाउनलोड दैट आईआईटी मेन एग्जाम 2019, उसे डाउनलोड कीजिए, उसे देखिए और आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा मैग्नेटिक्स एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप उस क्वेश्चन को 100% कर पाएंगे। That's why I am saying the lectures that are going here, CBSE definitely होगा ही होगा, JEE मेंस और नीट आपकी पॉकेट में मिलेंगे अगर आप इन लेक्चर्स के बेसिक को क्लियर करते हैं। अदरवाइज अगर आप उस चीज को कंफर्म करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू से, जब भी मैं कोई बात कहता हूं अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं आप कंफर्म कीजिए। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठाइए, नीट का उठाइए, चाहे आप मेन का उठाइए, जेई मेन का कोई भी पेपर उठाइए, यू विल गेट द टॉपिक दो जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस किए और आपको हमेशा मिलेगा। दैट्स व्हाई आई कॉन्फिडेंटली सेज कि अगर आप लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, नोट्स अच्छे से बनाते हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं, सारी असाइनमेंट करते हैं जो मैं आपसे फेस टू फेस करता हूं, डेफिनेटली आपका कंपटीशन हो चाहे आपका सीबीएसई हो, 100% आपको बेस्ट आउट ऑफ स्कोर मिलेगा। ओके, सो इस बात को प्लीज ध्यान में रखना। तो चलिए क्वेश्चन इज व्हेन एन alpha particle and proton with same kinetic energy enters the uniform magnetic field normally। तो दोनों ही सेम काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करते हैं। सो व्हाट इज इट आस्किंग? कंपेयर देयर ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरी मींस सर्कुलर पाथ, यानी रेडियस को कंपेयर कीजिए। तो चलिए आ जाते हैं। तो सिंस सॉल्यूशन कैसे करना है, प्लीज एवरीवन चेक दिस आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लैरिफाई कि हमें रेडियस का कौन सा फॉर्मूला लेना है। तो since we know that radius formula is mv by bq, p by bq, mass into velocity, momentum होता है। momentum क्या होता है? √2me क्लास 11th, और एनर्जी क्या होती है? √2mqv, v is equal to w by q से किया। अब इन चारों में से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड which formula we have to select, हमें कौन से फॉर्मूले के साथ जाना चाहिए। तो सेम क्या है? एनर्जी, तो हम इसके साथ जाएंगे R is equal to √2me by pq। अगर सेम मोमेंटम बोलता तो इसके साथ जाते हैं, सेम वोल्टेज तो इसके साथ, और सेम वेलोसिटी तो इसके साथ। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो किसका है? एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है। तो इधर ले लेते हैं अल्फा पार्टिकल एंड ऑन द अदर साइड लेट अस टेक द प्रोटॉन। तो चलिए रेडियस ऑफ अल्फा बनाते हैं। रेडियस ऑफ अल्फा √2 मास ऑफ अल्फा इनटू एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो सेम है दोनों का, तो एनर्जी को ये। मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए क्या है? सेम, यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, एंड चार्ज ऑफ अल्फा। प्रोटॉन का बनाते हैं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एनर्जी बाय b इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों को क्या करना है? कंपेयर। कंपेयर वर्ड मींस रेडियस, बस सिंपल, रेडियस ऑफ अल्फा बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस √2 मास ऑफ अल्फा एनर्जी बाय b इनटू चार्ज ऑफ अल्फा इनटू रेडियस ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में √2 मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी इनटू b इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चलिए b कैंसिल विद द b, e कैंसिल विद द e, 2 कैंसिल विद द 2 एंड रूट कैंसिल विद द रूट। चाहोगे? वो गलती मत करना बेटा, रूट कैंसिल नहीं होने वाला। तो रेडियस ऑफ अल्फा बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन होल रूट मास अल्फा बाय मास प्रोटॉन, क्योंकि ये दोनों रूट में, इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ अल्फा। अब वो रिलेशन काम में आएंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो ये तो आप जानते हैं, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। तो रेडियस ऑफ अल्फा बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? √4 मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन।
QP cancel, MP 4 का root 2 into 1 by 2. So what is the radius of alpha by radius of proton? 1 by 1. So it means radius of alpha radius of proton is 1:1. This is the type of numerical. The students जिन लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में याद किया था उस टाइम बहुत प्रैक्टिस की थी, तो अगर आपके दिमाग में है और डेफिनेटली है, बस एक बार क्विकली जाना है, रिवाइज करना है, देखना है, आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है. जो न्यू है, द स्टूडेंट जो अदर सेक्शन में थे जिनके साथ मॉडर्न में डील नहीं हो पाया था, बेटा आई हैव गिवन एवरी इंफॉर्मेशन. मैंने आपको रेशियो कंपैरिजन भी बता दिया, न्यूमेरिकल कैसे करना है. पहले फॉर्मूला डिसाइड करना है कि कौन सा यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा क्या सीन है. फिर दोनों का अलग अलग बना लो रेशियो, और ये जो रिलेशन है उसे यूज कर. डन है. तो ऐसे ही कुछ होमवर्क्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप लिख लीजिए जो आप लोग करेंगे यहाँ पे. और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए सीधा सा एक ही है, कंपेयर द ट्रेजेक्टरीज. कंपेयर द ट्रेजेक्टरीज. नंबर 1 अल्फा एंड ड्यूट्रॉन, same momentum. Okay, then second is proton and neutron, same potential. And the last one is alpha and proton, same velocity. Okay, और एक आखिरी क्वेश्चन, कंपेयर द टाइम पीरियड. एक और भी बन सकता है. यहां पे हम लोगों ने रेडियस कंपेयर करना सीखा, ऐसे ही आप टाइम पीरियड भी कंपेयर कर सकते हो, बट टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक ही है. वहां पे ऐसे नहीं कि mv को bq लिख देंगे और ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड में वेलोसिटी तो आती नहीं, तो mv नहीं हो सकता. mv नहीं होगा तो p नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वोल्टेज. तो यानी उसका तो एक ही फॉर्मूला है. बस कंपेयर करना आपको टाइम पीरियड ऑफ नंबर 1 alpha and neutron and number 2 proton and neutron. So these are the 5 numericals जो आपके लिए होमवर्क है. टाइम पीरियड कंपेयर करना है, इसके लिए तो एक ही फॉर्मूला है, बट ट्रेजेक्टरी कंपेयर करनी है, वो आपको देखना है. ओके, इन ऑल द केसेस आप लोग 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हो, यानी आपका पाथ सर्कुलर ही होगा डेफिनेटली. ओके, सो दैट इज होल फ्रॉम दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ पार्ट 2. थोड़ा लंबा गया है, बट ये ज्यादा इंक्लूड करता है क्योंकि अब ये आपको आगे के टॉपिक्स ज्यादा क्लियर करेंगे. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग, डू द न्यूमेरिकल, आस्क योर डाउट एंड कंप्लीट योर लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच बेटा.